Good afternoon students, myself Arpita Avasthi. In last video we read about classes of fungus. RH Whittaker tried to include all living organisms under 5 kingdoms based on some criteria. We have already discussed about these criteria in part 1 biological classification lecture. However, Whittaker did not include organisms like virus, viroids, lichens and one prions. So, in this video, we will discuss about these organisms and why they were not classified under RH Whittaker classification system. So, first let us read about virus. What is virus? क्या होते हैं virus? So, virus means venom or poisonous fluid. The scientific study about virus is called virology. The scientific study about virus is called virology. The reason why they did not included in classification that was virus are not truly living. So anybody asked why viruses are not classified in the RH Whittaker? So we can say that viruses are not truly living. In other words, they act as both living or non-living. Viruses are the connecting link between living or non-living. So first and nowadays you know very well about novel coronavirus COVID-19. Whole world is suffering from a single virus, coronavirus. So we will discuss here about viruses. So viruses are non-cellular. Non-cellular means acellular, उनमें कोई cell wall नहीं होती, which means they don't have a cell. You know that a cell is a basic unit of life. So when viruses don't have a cell means they are not living, right? They having an inert crystalline structure outside the body. They infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Means they multiply only inside the living cell of infected organism, means they can reproduce, and that's a feature of living organism. Yes. So I hope now you understand why Whittaker did not include virus in his classification system. Viruses are not truly living. Viruses are intracellular obligate parasites, which means which means that they are strict parasites inside a living organism. In humans, viruses cause disease such as smallpox, chickenpox, mumps, influenza, AIDS. By the way, you may know about 1918 influenza epidemic. It is deadly national disaster in Indian history. 6 million people died because of this virus. So these diseases can be easily prevented by vaccination. But if you don't get vaccinated, there is a high chance of getting affected. If infected viral disease are very difficult to treat because the virus cannot be stopped by even antibiotics. Antibiotics means last time discuss किया था हम लोगों ने. Anti means opposite, bio means microbes. So antibiotic means ऐसे antibiotics जो हमें हमारी सेफ्टी करते हैं किससे? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनसे. ठीक है. सो viral diseases are very difficult to treat because the virus cannot be stopped by even antibiotics because viruses have different structure. Yes, viruses have different structure and reproduce in a different way. हर टाइम जो भी इसका वे होता है इन्फेक्शन का वो डिफरेंट वे होता है देन बैक्टीरिया. सो viruses are more harmful, more disastrous comparison to bacteria. And do you know story behind discovery of viruses? It is started when Louis Pasteur understood that causative agent of rabies was too small. Too small means he was not able to see it under light microscope. However, he failed to identify causative agent. In 1884, a French microbiologist made Pasteur chamber land filter
So all the bacteria trap in the filter. We will discuss here later. In 1892, yes, 1892, एक साइंटिस्ट हैं Posture DJ Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters. Yes, जो बैक्टीरिया पाश्चर चैम्बरलैंड फिल्टर था उससे ये पास हो रहे थे, तो इससे ये दिखा मतलब बताया गया कि इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया. सो 1892 रशियन biologist DJ Ivanovsky used this filter to study about leaf mosaic disease of tobacco. He crushed some infected tobacco leaves and took the extract. Then he passed this extract to the Pasteur chamber lamp filter. So he expected that the bacteria which caused this disease will be trapped in the filter. But surprising, the extract after passing through the filter infectious. जो फिल्टर में पास हुआ उन्हें लगा कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करेंगे तो उसमें वो ट्रैप हो जाएगा, बट क्या था, सरप्राइजिंग रिजल्ट आया. जो फिल्टर होके बाहर गया, इन जो भी एक्सट्रैक्ट था वो आल्सो इन्फेक्शियस, विच मीन्स दैट द फिल्टर लिक्विड एबल टू कॉज इन्फेक्शन टू हेल्दी टोबैको प्लांट. दिस मीन्स दैट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ TMV टोबैको मोजैक वायरस इज नॉट बैक्टीरिया बट समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया which could easily pass to the filter. Ivanovsky thought that the infection might be caused by toxin released by bacteria. So अभी यहाँ पे ये प्रूफ नहीं हुआ था कि ये जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वायरस है. DJ Ivanovsky ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, बट अभी उसमें ये प्रूफ नहीं हुआ था कि ये वायरस ही. उन्होंने बोला था हाँ समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बट दे डोंट नो अबाउट वायरसेस. सो नेक्स्ट साइंटिस्ट 1898, a Dutch microbiologist Beijerinck, M.W. Beijerinck, demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum, यानी infectious liquid fluid. So 1898, a Dutch microbiologist Beijerinck repeated their experiment. किसका एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया उन्होंने, इवानोवस्की के. He said filter's solution contain a new form of infectious agent. He observed that agent multiplied. ठीक है, तो M.W. बेजेरिक जो थे उन्होंने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया था. उन्होंने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको को एक हेल्दी प्लांट में डाला, तो जो हेल्दी वाला प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया था. और जो फ्लूइड था उसको उन्होंने क्या बोला था, कंटेजियम वेवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड यानी सॉल्युबल लिविंग जर्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जर्म है और जो डिसीज को वो कॉज कर सकता है. और लेटर ही कॉल्ड इट वायरस, बाद में उसी को नाम वायरस दे दिया गया था. लास्ट में M.W. स्टैनले 1935 showed that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins. Yes, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है जेनेटिक मटेरियल यानी DNA RNA, और साथ में किसका बना होता है, प्रोटीन का. तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनले, उन्होंने क्या बताया था, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो और इसके लिए इन्हें क्या हुआ था कि नोबेल प्राइज भी मिला था. फॉर दिस ही वॉन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1946 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. Since the discovery of electron microscope 1930 डिस्कवर्ड हो गया था, सो वायरस में भी स्टडीज ग्रेट डिटेल. 1930 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो गई थी तो जो वायरस का स्ट्रक्चर था उसको डिटेल्ड में स्ट्रक्चर किया गया था. ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे. और दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. अभी बताया मैंने कि ये आउटसाइड इनएक्टिव रहते हैं. ये प्रॉपर्टी इनकी नॉन लिविंग की हो जाएगी. वायरसेज और ऑब्लिगेट पैरासाइट, अभी मैंने बताया ऑलरेडी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट में डिसीज कॉज कर सकते हैं. ये एड्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब डिसीज कॉज करते हैं. नेक्स्ट, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेज आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल. यस, जेनेटिक मटेरियल मीन्स टू टाइप्स, DNA और RNA. या तो वायरस में DNA होगा या RNA होगा. ठीक है, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA. नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA. कोई भी ऐसा वायरस नहीं होता जिसमें दोनों ही हो, DNA भी हो और RNA भी हो.
वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल होता है, a virus consists of genetic material RNA or DNA and second protein code also known as capsid, and the genetic material responsible for infection in any organism. Virus that infect plant have single stranded RNA and that animal for double stranded DNA, ये दिया भी है बुक में। A virus that infect plant that have single stranded RNA and virus that infect animals have single or double stranded RNA और double stranded DNA। ठीक है, DNA फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दोज वायरस हु हैव RNA in their genetic material also known as retrovirus. Yes. Now see the structure of virus. In 11th class, 2 virus you should have read. First TMV tobacco mosaic virus and second bacteriophage. तो first we will discuss here बैक्टीरियोफेज। नाम से ही लग रहा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, फेज मीन्स क्या होता है? ईटर्स। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया ईटर्स। ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को खाते हैं। इन बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ डेडली वायरसेस, हाउएवर दे हैव सम यूजेस। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो वायरस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और इन्फ्लुएंजा वायरस था, उसने भी बहुत ही एपिडेमिक कंडीशंस ये करते हैं। बट कुछ जो वायरस होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि सच एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को ईट करना। इसको सबसे पहले अगर जो देखा गया था वो गंगा नदी जो है उसमें पाए गए थे। तो बोलते हैं ना कि जो गंगा नदी का पानी होता है बहुत ही टाइम तक उसको प्योर रहता है। क्यों प्योर रहता है? क्योंकि वहाँ पे ये वायरस अपना काम कर रहे थे। जितने भी जर्म्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया थे उनको ये किल कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको गंगेज वायरस भी बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, प्रोटीन कोड जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैप्सिड, स्मॉल सब यूनिट जो होगी। अब इसमें देखोगे जो कैप्सोमियर्स, जो कैप्सिड होती है वो प्रोटीन होती है, और जो छोटे छोटे जैसे इसमें देख सकते हो ये कैप्सिड है, प्रोटीन। और ये कई सारे जो स्मॉल यूनिट बने इसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। जैसे प्रोटीन तुमने पढ़ा था लास्ट टाइम, एमिनो एसिड combine together to form protein, so capsomeres combine together to form capsid. Okay, next देखो कैप्सोमियर्स जो होता है वो डिवाइडेड होता है वो अलग अलग पार्ट्स में। तो कैप्सोमियर्स जो भी है आर अरेंज्ड इन 2 फॉर्म्स, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। ठीक है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। इफ यू सी हेलिकल इन टीएमवी, पॉलीहेड्रल मीन्स एक हेड होगा, कॉलर होगा, टेल होगी। तो ये पॉलीहेड्रल इन बैक्टीरियोफेज एंड हेलिकल इन टीएमवी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें मिलेगा तुम लोगों को सबसे पहले ये हेड है, ये कॉलर, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये टेल फाइबर। सेम आरएनए में ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है आरएनए का, ये आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड, और ये जो है प्रोटीन कैप्सिड और मेड अप ऑफ मेनी सब यूनिट्स यानी कि कैप्सोमियर्स। सो वायरसेस आर डिसीज कॉजिंग इन प्लांट्स और एनिमल्स बोथ। एनिमल्स में मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा। इन प्लांट्स लाइक सिम्टम्स मोज़ेक फॉर्मेशन इन टीएमवी, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। जनरली देखा है येलो हो जाती है लीव्स। डॉर्फिंग, कोई प्लांट उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, स्टंटेड ग्रोथ। सो दीज आर द सिम्टम्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। थैंक यू।